We're just sitting on the side. चीता ना साइड पे रोड पे बैठे एंड माय मम्मा लाइक वीडियो आई देखिए मत करो कार हटी कर देगा हरे कृष्ण हरे कृष्ण जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण
Krishna
की जय। जय गौर ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। So welcome all of you to our Sunday morning, late morning Bhagavad Gita class. So next will be early morning. Next Sunday, 8:30. Next Sunday we are welcoming Jagannath, Baldev, Subhadra deities in Ghatkopar. You are invited. What time? I will go from here only. Okay. So you can join me. So you can enjoy there. So Ghatkopar Kalpataru Aura. Okay. So one of my friend, yes, just exactly opposite to that. So one of our brahmachari is my friend. He's doing preaching over there, Gita classes, just like us, for last I think 3-4 years. So they have cultivated few devotees there. Many are chanting 16 rounds like all of you. And after so many years, after struggling hard, finally some devotees are coming forward and welcoming deities in their home. So you can join and witness the mercy of Gaur Nitai and Jagannath, Baldev, Subhadra. So in Bhagavad Gita, last 2 classes we studied 2 verses. Last we studied 3 verses. Really? 3? 3, okay. This time we will study 3 verses today. Hare Krishna. So these 2 verses are the most important. Sorry? That sound is little, इसको repair करना पड़ेगा. Now I have realized something, malfunction inside. This sound is okay? Is coming? Yes. बड़ा कम आ रहा है. हरे कृष्णा. इधर से हवा निकल रहा है. हरे कृष्णा. बेचारा छोटा पैक है वो. नीलेश प्रभु के लिए थोड़ा कम है। अच्छा, अगले हफ्ते रिपेयर होके आ जाएगा. So needs to be, इसका मेंटेनेंस नहीं किया था बहुत टाइम. जैसे हमारा नहीं हुआ। मेंटेनेंस आप करते हैं ना डेली? सॉरी? हाँ. Okay, it's better I think here. Hare Krishna. So we are studying Srimad Bhagavad Gita, chapter number 2, and we
we last time concluded verse number 41. 41. So, two verses, 40 and 41st, are the two characteristics of Bhakti Yoga. Or any spiritual path, if you want to give the main features or characteristics. So, these are the two. So, can you tell me? Verse number 40. What does it say? Was there any step taken towards bhakti is eternal and stays forever? Yes. So, whatever we do in spiritual path, even a little endeavor taken actually gives you eternal benefit, eternal bank account. It's not like a bank account of your world which will get exhausted. Or if the government fails, then currency also Hare Krishna. And it has happened in the past in many countries. And in the verse number 41st, we studied last time. Should be one-pointed. Yes, one-pointedness, and you have shown your one-pointedness quite aggressively. That one-pointedness was very. All capital. You were there in the last class? You were there? Last class? She was there? So, that one-pointedness was seen only in few of the devotees. Happened. Hare Krishna. Okay. So, how your chanting going on? Today also chanting only will come in the purports of Prabhupada. Wow. Let's clap. So finally something has happened inside. कुछ हो गया है. Prabhupada is approved. Yes, yeah. Okay. So this is the miracle of serving Vaishnavas. You are serving on Saturday morning, right? Yes. So this is the Sunday we didn't go yesterday. We went at home. puja. Yeah. Okay, Our okay. ancestor, Chacha, Okay. expired, so that day. Okay. Here only you did? At Andheri. Okay. 4 years, it has been 4 years, so it hasn't get puja. Okay. So good. So quite a tough competition coming from these two stalwarts. 16 and 4. What about you? 10. मेरा I'm sticking to 7. वो होता है कभी 5 होता है कभी 7 होता है. 10. Minimum 10. Good. Should maintain some number constant. Baki bonus. What about you? Improve it. Okay. I think you were not there in the last class, right? I was there. You were there. I don't know why I am forgetting. Okay. Early morning based. Oh, I think I was also. Sorry? You need to take attendance then. Okay, yes. I need to take attendance. Dinesh Prabhu was not there last time. Yeah, he was there. He was there. He came. He was there, he always there. It is because it was early morning. Okay. So, anyways, yeah. So, what's? Yeah, she was there. I remember. She had a long discussion. हो गया वो चैप्टर कंप्लीट वो पर्पस कंप्लीट हो गया. Okay. So, 10, 1, 16, 4, 5. 5 Mahamantra or other? नहीं महामंत्र मेरे 2 होते हैं. Okay, good. मेरे दूसरे. Okay. 5 plus 2. ठीक है, ये फॉर्मूला है उनका. 2, very good. I told you last time. Yes. So you are also quite aggressive now. Fanatically, fanatic. We discuss, become fanatic. Okay. 1, 2. Improvement है काफी. हरे कृष्णा. अब तो 1 plus भी हो गया आपका. आप हर बार ही याद दिला देते हैं. बोलने की कोशिश करते हैं. Hare Krishna. Now you have to focus more on Mahamantra. Yes. I think your new. Yes, she's there. She also has grown up now. So now you are free. You can chant more now. So like that. So then we will now start with verse number 42nd. So till 40, 41st, 39 was the junction where Krishna
says that don't bother about 38 was the junction. He says don't bother about the victory or defeat, happiness, distress, just do it for the sake of doing. Indirectly he is saying just do it for me. मैं बोल रहा हूँ ना इसलिए करो, ठीक है. And then 39, he explained the whole phenomena in detail. We discussed it in quite a lot detail. What it means to be freed of कर्म बंधन, कर्म के बंधन से कैसे मुक्त होना है, राइट. उसके लिए भक्ति करनी होती है, और भक्ति के 2 लक्षण श्लोक नंबर 40 और 41 में बताए गए हैं. आफ्टर नरेटिंग दैट, नाउ इन द वर्स नंबर 42nd, 42nd 43 together 2 verses, Krishna says, यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्ति अवपश्चित वेदवाद रथा पार्थ नान्यद अस्तिति वादिन कामात्मना स्वर्गपरा जन्म कर्म फलं प्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोग ऐश्वर्य गतिं प्रति. Somebody read the translation. Men of small knowledge are very much attached to the flowery words of the Vedas, which recommend various fruitive activities for elevation to heavenly planets, resultant good birth, power, and so forth. Being desirous of sense gratification and opulent life, they say that there is nothing to them. Yes. 2 श्लोक एक साथ है, इसलिए पहले ही 2 श्लोक पूरे हो जाएंगे हमारे, ये तो पक्का है आज. ओके. और यहाँ पे कृष्ण कहते हैं, इट्स अ वेरी मेटाफोर, देयर आर मेनी metaphors in this verse, and these 2 verses actually contrast with the previous 2 verses. The previous 2 verses they describe about glories of doing bhakti. भक्ति के अलावा दूसरा मार्ग होता है कर्म कांड का मार्ग, जो कि हम पहले ही बहुत पीछे छोड़ के आगे निकल चुके हैं. वर्स नंबर 31 to 37, rather 37 was the path of karma kanda, where Krishna told Arjun that why don't you go to heaven? Anyways you are a Kshatriya, you have to anyways fight. If you fight, you will win the kingdom. If you are victorious, then you enjoy. If you are defeated, you get the Veera Gati, then you go to Swarga, then you enjoy, right? But उसके बाद तो पूरा पलटी कर दिया गेम. बोले कि don't bother about this victory and defeat and all those things, just do it because I am telling, right? क्योंकि क्या होता है कभी कभी अगर आपको लार्जर पिक्चर मालूम नहीं है ना ठीक से, समटाइम योर किड्स दे ऑल्सो आस्क क्या पापा मम्मी इतना पढ़ाई करूँ मैं, तो आप बोलते हैं जस्ट पढ़ाई कर, डोंट थिंक अबाउट एनीथिंग. यू नो कुछ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, मैं फेल हो जाऊंगा तो मैं पास हो जाऊंगा, तो इतने मार्क्स मिले तो नहीं मिले तो फिर मैं इंजीनियरिंग में नहीं जा सकूंगा, मेडिकल, ये वो बहुत सोचते रहते हैं. सो पेरेंट्स उनको बोलते हैं जस्ट डोंट थिंक ऑफ एनीथिंग, जस्ट स्टडी राइट नाउ. बोला होगा ना आपने भी, जस्ट पढ़ाई करो चुपचाप. सो राइट नाउ वी आर इन द स्पिरिचुअल पाथ, वी आर लाइक किड्स, हमको मालूम नहीं है अभी क्या होने वाला है आगे. सो दिस इज सेक्शन ऑफ कर्म योगा वेयर द प्रैक्टिशनर इज नॉट सो मैच्योर टू अंडरस्टैंड what is exactly spirituality and how to get rid of these anarthas and unwanted things in life and कर्म के बंधन से कैसे बाहर छुटकारा पाना है. तो अर्जुन actually definitely he is a pure devotee, he knows everything, but he is playing a role of a ordinary human being who doesn't understand क्या है ये अध्यात्म, क्या होता है, मैं जगत से कैसे मुक्त हूँ, मैं दुखी क्यों हूँ, मुझे कृपया दीजिए ज्ञान करके अर्जुन बोल रहे हैं. कृष्ण से जस्ट डू इट फॉर द सेक ऑफ डूइंग. तो 2 श्लोक में वो बताया कि भक्ति करने से क्या होता है. फिर एग्जैक्टली अभी इन 2 श्लोकों में, यहाँ पे 2 श्लोकों में राधर आगे 3-4 श्लोकों में कॉन्ट्रास्ट करेंगे भक्ति पाथ के साथ कर्मकांड पाथ को. दोज हु आर ऑन द पाथ ऑफ भक्ति, दे आर रेजोल्यूट इन वन पर्पस, दे आर फोकस्ड एंड दे नो जो मैं कर रहा हूँ इसका मुझे इटर्नल बेनिफिट मिलने वाला है. whereas those who are on the path of karma kanda, these 2 verses they describe the person who is on the path of karma kanda. कर्म कांड मतलब फ्रूटिव मेंटेलिटी. फ्रूटिव मतलब जो फ्रूट को पाना चाहते हैं उसे कहते हैं फ्रूटिव, यू नो, द वन हु इज फ्रूट लवर. किसी भी काम में कुछ फल नहीं मिलेगा तो नहीं करूँगा, मतलब स्वार्थ चाहिए हर काम में. लोगों से बात करने में मेरा क्या फ़ायदा होने वाला है, तभी बात करूँगा मैं. वहाँ जाके मुझे कोई फ़ायदा होने वाला है क्या? अच्छा आपने मुझे उस फंक्शन में इन्वाइट किया है, कुछ फ़ायदा होने वाला है क्या मेरा? कोई कॉन्टैक्ट बनने वाला है क्या? कुछ गिफ्ट मिलने वाला है क्या? विदाउट मोटिवेशन ये जाता ही नहीं काम करने के लिए.
तो संसार में ऐसे बहुत सारे लोग रहते हैं, हम लोग भी वैसे ही हैं, बिना मोटिवेशन के काम नहीं करते हैं. मोटिवेशन इन द सेंस कि नॉट एग्जैक्टली मोटिवेशन, बट द मोटिवेशन बिहाइंड इज फ्रूट सम सेल्फिश गेन. तो ये जो लोग होते हैं कर्मकांड के मार्ग पर चलने वाले, जो कर्मकांडी यज्ञ करते हैं या फिर पूजा पाठ करते हैं, आजकल है ना संसार में लोग बिजी होते हैं तो किसी पंडित जी को बुला लेते हैं, पंडित जी आइए जरा करके दीजिए ना हमारे घर पे काम. पंडित जी क्या बोल रहे हैं मालूम नहीं आपको? मालूम था कुछ? कभी शादी में मंत्र बोले थे पंडित जी ने? मालूम पड़ा था आपको क्या बोल रहे पंडित जी? हरे कृष्णा. पता होता तो थोड़ी करते. लगता है नेहा माता जी का भी वानप्रस्थ होने वाला है जल्दी. हो गया ऑलरेडी. हरे कृष्णा. बचा कुछ एक्सपीरियंस जूही माता जी ने दिया लगता है. हरे कृष्णा. सो लोग क्या सोचते हैं कि तो धर्म कर्म थोड़ा करना चाहिए, क्योंकि डर तो हमेशा रहता है कि अगर भगवान की पूजा नहीं की या फिर देवताओं को प्रसन्न नहीं किया तो हमारा कुछ अनिष्ट हो जाएगा. डर डर के करते हैं. बट मोटिवेशन बिहाइंड दिस इज ऑल मटेरियल गेन. They are not bothered at all about spirituality. Even after coming to spiritual life, still that goes on for long time. It's not so easy journey. ये complete आपको अपने आप को change करना है from selfishness to selflessness. The entire journey of Bhagavad Gita is to become selfless. Selfless मतलब आसान चीज नहीं होता है. To become selfless, you have to sacrifice yourself. Sacrifice your time, energy, money, your thoughts, your opinions, your ego, and so many things. It's extremely difficult for a conditioned soul to undergo this surgery. But today or tomorrow we have to go through this if we want to get purified. तो अभी आपको बोला जब करने के लिए तो आपको टाइम देना पड़ता है ना, 2 घंटा. It's a sacrifice of time. उस 2 घंटे में पता नहीं आप पहले क्या क्या अपने इंटरेस्ट जो थे उसको फुलफिल करते थे, हॉबीज थे उसको फुलफिल करते थे. नाउ यू हैव टू invest that time in chanting Hare Krishna, isn't it? Sacrifice of time, your thoughts, your opinions, your comforts. Chanting is not so easy actually देखा जाए तो. Even though it appears to be easy initially, but actually it is difficult if you are really chanting attentively. Mind diverts quite frequently. Yes, it's a very heavy exercise. समझेंगे ना इंग्लिश टू? आपके एक्सरसाइज से कई लाख करोड़ गुना जबरदस्त हेवी एक्सरसाइज है ये. By your exercise you build your muscles and strengthen your body. Through this exercise of bringing back the mind to the mantra, you exercise your spiritual muscles and you build your spiritual muscles. तो आप बोलेंगे spiritual muscle का क्या फायदा हमको? हमको तो ये वाले muscles चाहिए. So the spiritual muscles, they will rescue you from crisis whenever required. क्राइसिस तो सबके जीवन में आने वाला है, गारंटीड. आज नहीं तो कल पक्का, और आते रहता है बीच बीच में. कभी हेल्थ क्राइसिस आएगा, रिलेशनशिप क्राइसिस आएगा, बिजनेस क्राइसिस आएगा, और कोई पड़ोसी चिल्लाएगा आपको, कोई कुछ नहीं बोलेगा, तो अपने आप में क्राइसिस अपने मन में चलता रहता है. आज मज़ा नहीं आ रहा है मेरे को, ये क्यों प्रसाद में ये क्यों बनाया, आज क्यों बनाया? मतलब दुनिया आपके लिए थोड़ी काम करती है, दुनिया अपने आप में अपने लिए काम करती है. So unless you learn to adjust, you can't survive in this world. Not that you can satisfy all your employees, isn't it? You have the experience of dealing with your employees. It's extremely difficult. So they also adjust, you also adjust. The whole world is just adjustment. और adjustment करने का art जो है, गीता में आएगा आगे, योग कर्मसु कौशलम. That art is when you strengthen yourself from inside. Right now, हमको लगता है कि मैं मजबूत आदमी हूँ, but एक थोड़ा अपमान अगर कोई कर दे, you will crash down there only. और 10 दिन कोप भवन में. क्यों उसने ऐसा बोला मुझे? क्या समझता अपने आप को? जानता नहीं मुझे मैं कौन हूँ? ये पूरा एम्पायर मैंने खड़ा किया है, मुझे ऐसा बोल रहा है. आई विल टेक रिवेंज. बड़े दिन आपको पता चलता है मेरी कैपेसिटी नहीं है रिवेंज लेने की. सो यू आर हेल्पलेस ऑल्सो, यू कांट डू एनीथिंग. अपने आप में मरते रहो फिर. सो अनलेस यू हैव स्पिरिचुअलिटी टू रेस्क्यू यू फ्रॉम दिस सिचुएशंस, यू एक्चुअली गो इनटू लॉट ऑफ डिप्रेशन. लॉट ऑफ बैड हैबिट्स, दे आल्सो कम इन दैट पीरियड ओनली. क्योंकि अगर कहीं तो शेल्टर चाहिए ना,
यहाँ नहीं मिला तो फिर अपने आसपास तो भर भर के है, तो फिर people become addict to so many unwanted things and that's how they spoil their life. इसलिए यहाँ पे अभी ये डिस्क्राइब कर रहे हैं कि the one who is on the path of कर्म कांड, और अभी आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है एकदम बिगिनिंग में प्रॉपर ट्रांसलेशन में, men of small knowledge. So they are knowledgeable but their knowledge is very small. थोड़े बहुत वेद पढ़ लिए तो क्या पूरा ज्ञान आ गया क्या आपको? है ना, लोग थोड़ा सा कुछ पढ़ लेते हैं, यहाँ वहाँ सुन लेते हैं, हम भी फॉलो करते हैं, हमारे एक बाबा जी हैं या स्वामी जी हैं या हम बुक पढ़ते हैं, तो बहुत लिखते हैं men of small knowledge are very much attached to the flowery words of the Vedas. What are the flowery words in the Vedas? Do you know what is the meaning of flowery words? उसको संस्कृत में यहाँ कहा गया है पुष्पिताम वाचम. पुष्पिताम वाचम यानी कि flowery words. Mentioned so beautifully that you get mesmerized by those words. What is that but? Just words cannot, satisfy you. What exactly you get? Aji? An ego massage. You get an ego boost. Okay, but what kind of? Praise somebody. Okay, let us go to the purport. Let us build up the vocabulary. Okay? So, yeah, we'll go into that. उसको छेड़ दूंगा तो अभी और दूसरे डायरेक्शन में जाएगा. इधर ही इसको थोड़ा सा क्लियर करता हूँ. फ्लावरी वर्ड्स. सो इसके पहले फ्लावरी वर्ड को समझने के पहले पूजा करते हैं कुछ तो वो लगता है आप ये पूजा करेंगे तो आपका ये अच्छा होगा. हाँ, you got it. Exactly. फ्लावरी मतलब बड़ा चढ़ा के बताया जाता है, सजा के बताया जाता है. एक्चुअली है नहीं वैसा कुछ. और आजकल ये बहुत होता है. बहुत मतलब बहुत ही हो रहा है. The whole world is into कर्मकांडा only. The whole world is motivated by these flowery words. You go to the Christianity, पूरे मिल जाएंगे. नहीं, वो ये बोलते हैं कि जैसे माय हस्बैंड साइड ऑफ द फैमिली उसके कजन्स हैं, वो 3-4 महीने में कोई पूजा कराते हैं. आप ये करोगे ना आपका काम बहुत अच्छा होगा. हाँ. और पैसा मिलेगा. और हो जाता है. पूजा कराते हैं और होता भी है. हरे कृष्णा. I don't think so. You go to the Christianity, you go to Islam, you go to Hinduism. This kind of mentality is all pervading everywhere. कर्मकांड. So इसलिए यहाँ पे जाएंगे, आप यहाँ पे है एक शब्द मिलेगा उस वर्ष में, वेदवाद रता. सेकंड लाइन में वेदवाद रता. ठीक है. सो वाद मतलब वाद करना. वाद, हाँ, वाद. राइट. सो वेद के ऊपर वाद करना. और ये जो लोग वेद के ऊपर वार्तालाप करते हैं, बहुत सारे वेदांती, उन्हें आगे क्या कहते हैं? आगे कहा गया है वेदवादरता पार्थ नान्यत अस्तिति वादिना. नान्यत अस्तितिवादिना मतलब वेदों में जो कर्मकांडीय मार्ग दिखाया गया है, संसार में धन दौलत पूजा प्रतिष्ठा, पत्नी बच्चे घर बिजनेस व्यापार सब प्राप्त करने के लिए जो भी है, धर्म का उद्देश्य केवल यही है और उसके अलावा कुछ भी नहीं है. ऐसे जो बोलने वाले लोग होते हैं उनको कहा जाता है वेदवादरता पार्थ. अकॉर्डिंग टू वेदा मीन्स अकॉर्डिंग टू कर्मकांडीय वेदा. वेदा के बहुत सारे प्रकार है. कभी आपको एक दिन इलाबोरेट डिस्कशन कराएंगे, या मैंने एक रिकॉर्ड किया क्लास उसको दे दूंगा, आप सुन लीजिएगा उसको. उसके जो ब्रांचिंग वेदों के और सब ब्रांचिंग, एक्चुअली इसके पहले भी एक बुक किया जाता है लेकिन किया नहीं है आपका. गीता पढ़ने के पहले एक श्री ईशोपनिषद करके बुक रहता है, उसको स्टडी किया जाता है. बट वी आर नॉट स्टडीड. अब तो जेएसडी कोर्स से धाराशायी हो गए थे. बोले इज टू मच, व्हेन वी विल स्टडी भगवत गीता. तो बोला ठीक है जाने दो, बेचारे लोग तकलीफ में हैं. So they say, यहाँ पे ट्रांसलेशन में दिखेगा आपको, which recommend various fruitive activities for elevation to heavenly planets, result in good birth, power and so forth. बराबर? जो आपने कहा कि अच्छा कर्म करोगे तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी, अच्छा करोगे तो अच्छे नाती पोते जन्म लेंगे, बच्चा बचपन से इंटेलिजेंट होगा. होता है वैदिक कर्मकांडी. लेकिन अभी यू मे नॉट बी गेटिंग रिजल्ट और मे बी गेटिंग डिपेंडिंग ऑन हाउ द सैक्रिफाइसेस आर परफॉर्म्ड. वो यज्ञ करने के लिए शुद्धता भी होनी चाहिए ना, वैसे ब्राह्मण भी होने चाहिए ना. नॉट दैट दीज आर फॉल्स, दीज आर ट्रू ओनली, राइट. बट इधर ट्रू और फॉल्स, दीज थिंग्स आर एक्चुअली इवेंचुअली फॉल्स ओनली बिकॉज दे आर नॉट गोइंग टू सेटिस्फाई योर हार्ट. वी आर लुकिंग एट दिस वर्सेस फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ स्पिरिचुअलिटी. कर्मकांडीय मार्ग में तो दीज आर ऑल इन ऑल, पूजा पाठ मंत्रों का उच्चारण, देवी देवता को प्रसन्न करो, धन प्राप्त करो, ये सब, दीज आर नॉर्मल रूटीन फॉर एनी
religious man in this world, whether he is Christian, Muslim or Hindu. तो प्रभुपाद ट्रांसलेशन आगे कहते हैं, being desirous of sense gratification and opulent life, they say that there is nothing more than this. तो आपने कितने सारे लोगों को देखा है जो बोलेंगे कि हम वेदों में विश्वास करते हैं, वेदों को मानते हैं, वेदों का पाठ करते हैं, बट कितने लोग चैंटिंग करते हैं? कितने लोग चैंटिंग करते हैं? क्या आप लोग कर रहे थे चैंटिंग? हरे कृष्णा। और आप तो स्ट्रॉन्ग फॉर्म बिलीवर इन वेदास है ना, वेदों में विश्वास करते हैं ना, पहले से स्ट्रॉन्ग बिलीफ है आप लोगों का, मैंने देखा है आप लोगों का, यू बिलीव वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग स्टॉन्च फेथ। बट प्रॉब्लम क्या है कि वेदों का निष्कर्ष क्या है, सारांश क्या, ये नहीं बताएगा आपको कभी। यू ओनली नो द सुपरफिशियल अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेदास। वेदास मतलब क्या, उसमें कुछ मंत्र होते, पंडित जी आएंगे, पूजा पाठ करेंगे, कुछ सब कुछ अच्छा हो जाएगा, वाह बढ़िया, बराबर ना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, होना चाहिए सबका अच्छा। बट हमें साथ में ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि दिस इज नॉट द अल्टीमेट गुड दैट वी आर एक्चुअली एमिंग फॉर। दिस सम ट्रांजिशनल गुड टेम्पररी इन द ड्यूरिंग आवर जर्नी, बट आवर जर्नी इज वेरी लॉन्ग जर्नी, वी हैव टू गो वेरी लॉन्ग फार। सो नाउ इसको और समझाने के लिए शब्द वहां पे दिए गए हैं, विपश्चिता एंड अविपश्चिता। देखा आपने, देखा, कामात्मना स्वर्ग परा जन्म कर्म फलाप्रदाम क्रिया विशेष बहुल, सॉरी कहाँ गया ये, या फर्स्ट लाइन में प्रवदंती अविपश्चिता। सो विपश्चिता मतलब डिस्क्रिमिनेटिंग एंड अविपश्चिता मतलब नॉट एबल टू डिस्क्रिमिनेट। नॉलेज एक चीज होती है, लेकिन नॉलेज से डिस्क्रिमिनेट करना दूसरी चीज होती है। डिस्क्रिमिनेशन मतलब क्या, ये अच्छा है बुरा है, ये सही है गलत है, बराबर, उसको कहते हैं डिस्क्रिमिनेशन पावर। तो इन लोगों के पास देयर इज नो डिस्क्रिमिनेटिंग पावर, दे आर अविपश्चिता नॉट विपश्चिता, राइट। और ये लोग वाद लगाते रहते हैं हमेशा, कहीं भी कहीं डिबेट करो, नहीं ये इस्कॉन वाले क्यों इतना महामंत्र जप करने के लिए बोलते हैं, कितने लोग हैं अपोज करते हैं। देयर आर सो मेनी वीडियोज ऑन यूट्यूब अपोजिंग इस्कॉन। व्हाई इस्कॉन इज स्प्रेडिंग प्योर भक्ति, व्हाई दे डोंट वर्शिप देवताज आल्सो। हरे कृष्णा। तो हम लोग कोई जवाब देते नहीं किसी का, जिसको जो बोलना है बोलते रहो, बोलते रहो। जिसको भक्ति करके अनुभव आया है, महामंत्र जाप करके, वो अपना चुपचाप करता है। He doesn't waste his time in just debating with these, less intelligent people. So some devotees they try to answer and cross question them, but जो मैंने देखा है हमारे बहुत सारे जो कोर प्रीचर्स हैं, वो कहते हैं कि तुम अपना करते रहो भक्ति, यू कीप चैंटिंग हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्योंकि बेचारों का धंधा चौपट हो रहा है ना। अभी देव देवता की पूजा करके कितने लोग क्या क्या कमाते हैं ना। वी डोंट से कि डोंट वर्शिप देवताज देवीज, अच्छी बात है, करना चाहिए उनको, बट किस उद्देश्य से करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, उसकी विधि होती है। इफ यू मिस द पॉइंट, even though you may get some temporary things, but in the long run you lose your peace of mind, then what is the utility of that? आखिर हम लोग आत्म शांति के लिए संघर्ष कर रहे हैं संसार में। हमको कभी कभी ऐसा लगता है कि बहुत कुछ प्राप्त कर ले तो हम सुखी हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। जब तक मन में शांति नहीं है तब तक संसार की बहुत सारी चीजें हमारे किसी काम की नहीं आने वाली है। इसलिए देखिए ना, हाउ मेनी people are under depression in India, 20 crore, that is almost 20%। जबकि इंडिया ऐसा जगह है जहाँ से ये सारे वैदिक मंत्र पाठ पठन का उच्चारण हुआ है, जिससे डिप्रेशन दूर होता है। यहाँ पे 20 करोड़ लोग हैं। आपके हॉस्टल में हुआ था ना दिल्ली में, व्हाट इज दैट केस, डिप्रेशन। डिप्रेशन क्यों आता है, इधर पॉजिटिव और नेगेटिव, इन द सेंस कि इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स और सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। इन्फीरियरिटी मतलब मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मुझे कुछ नहीं आता। सुपीरियरिटी मतलब मैं सब कुछ जानता हूँ। बोथ द केसेस आर हरे कृष्णा, डिप्रेस्ड केसेस। सो इसलिए यहाँ पे कहते हैं दे आर नॉट विपश्चिता अविपश्चिता, जैसे नान्यद अस्तित्ववादी ना, इनको छोड़कर वेदों का और धर्म ग्रंथों का उद्देश्य अपने आप को स्वर्ग में लेके जाना, संसार में बहुत सारा भोग प्राप्त करना, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, ये ऐसा कहते हैं, राइट। तो नाउ दीज पीपल, इनको डिस्क्राइब करते समय एक मेटाफोर यूज किया गया है यहाँ पे थर्ड लाइन में वर्ष के, कामात्मना
कामात्मना यानी कि कहते हैं कि इनका आत्मा काम से बना हुआ है। आत्मा एक्चुअली काम से नहीं बना, आत्मा तो आत्मा है, बट देयर इज सो मच, so many desires, so much lust, greed, anger within their heart that Krishna says their heart, their atma is made of काम, काम आत्मना। एक्चुअली आत्मा तो आत्मा है, बट उसको इस तरह से डिस्क्राइब किया गया है टू एक्सप्लेन दैट दे हैव सो मेनी डिजायर्स, ये चाहिए वो चाहिए, यहाँ जाना है वहाँ जाना है। हरे कृष्णा, अभी मैं ट्रेन में आ रहा था तो एक बड़ा ग्रुप ट्रेन में आया था, किधर माथेरान कहाँ पता नहीं घूम के आए हो किसी रिजॉर्ट में, बच्चे बूढ़े सब लोग दूर दूर से कहीं पे वो ट्रेन में, कुछ लोग यहाँ बैठे हैं कुछ लोग वहाँ बैठे हैं, और बैठ के वही बातें अपनी फोटो दिखा रहे रिजॉर्ट के, यहाँ पे ये हुआ, यहाँ से हमने जंप मारा था, फिर क्या हुआ। तो मैं अपना चैंटिंग कर रहा था, ऑल एज ग्रुप्स, छोटे बड़े। मैं बोला बच्चों को बचपन से ट्रेनिंग हो रहा है, वेरी गुड ट्रेनिंग, दे आर बीइंग ट्रेन्ड हाउ टू स्पेंड देयर फ्री टाइम। इंस्टेड ऑफ इस एज में कुछ अच्छा अध्यात्म के बारे में सीखना, द पीपल आर जस्ट स्पॉइलिंग देयर टाइम बिहाइंड पिकनिक्स एंड ऑल दैट। बुरी बात नहीं, ये करो, लेकिन दे आर नॉट बॉदर्ड अबाउट धर्म क्या है, कहाँ जा रहे हैं हम, क्या होगा हमारे साथ, नो आइडिया, राइट। इसलिए ये लोग क्या करते हैं, वो कहते हैं डू लॉट ऑफ यज्ञ, क्रिया विशेष बहुलाम भोग ऐश्वर्य गतिम प्रति। क्रिया विशेष बहुला मतलब दे डू मेनी काइंड ऑफ sacrifices, right? किसके लिए? so that they can go to स्वर्ग, भोग ऐश्वर्य गतिम प्रति। so you may have heard these two terms, कांचन and कामिनी। कांचन means सोना और कामिनी मतलब opposite sex, for man woman, woman for man। so these people are behind these two things only, धन और opposite sex। पूरे अगर आप पूरे संसार को अगर आप समराइज करेंगे तो these are the only two things people are running behind। धन चाहिए, अपोजिट सेक्स चाहिए। अब ऐसा नहीं कि इसमें कोई प्रॉब्लम है लेने के लिए। अभी अगर आपने देखा होगा स्वर्ग में देवता को भी इन्हीं दो चीज़ों की इच्छा होती है, धन चाहिए, अपोजिट सेक्स चाहिए, बट दे ट्राई टू गेट इट थ्रू स्क्रिप्चरल वे। क्या करते हैं? यज्ञ करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, उससे प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। और डीमन जो रहते हैं, असुर, वो बिना यज्ञ के प्राप्त करना चाहते हैं। बट इधर डीमन और देवता both are actually in the clutches of material energy within the माया। तो आपने देखा होगा इंद्र कितनी बार परेशानी में आते हैं, कितनी बार टेंशन में आते हैं, अरे मेरा गद्दी कोई लेके जाएगा स्वर्ग का, कोई ऋषि तपस्या कर रहा है, अरे मेरा लेके जाएगा। ये विश्वामित्र की कथा आपने सुनी होगी, हाउ मेनी टाइम्स ही ट्राई टू just get away with his meditation, but why? He is so feeling insecure। Insecurity क्यों होती है? क्योंकि he is not getting shelter in the supreme, he is trying to find shelter on the throne of the heaven, which is temporary anyways। इसलिए अभी देखिए परपोर्ट के फर्स्ट लाइन में प्रभुपाद कहते हैं, people in general are not very intelligent। हरे कृष्णा, people in general are not very intelligent and due to their ignorance they are most attached to these fruitive activities recommended in the karma kanda portions of the Vedas, right? So there is a statistics, if you see population of 1000, say for example 1000 लोगों में there will be 900 शूद्रास, ठीक है, 900 laborers, शूद्र people, there will be 90 वैश्या यानी कि business people। कितने हो गए? 990। 1000 का अगर सैंपल पॉपुलेशन चेक करें हम लोग, 900 no 900 शूद्रास। आर यू ऑल अवेक? Yes. फीलिंग स्लीपी और आज तो लेट संडे मॉर्निंग, अच्छा नींद हुआ होगा ना सुबह, मीठा मीठा 8 बजे तक। सो या 900 शूद्रास, 90 वैश्यास, there will be 9 kshatriyas, administrative people, and only 1 brahmana in the population of 1000। अगर 1000 लोगों को जमा करें, चेक करें इनका मेंटल, नॉट एज पर देयर कास्ट एंड दिस थिंग, बट एज पर देयर साइकोफिजिकल नेचर। अभी तो आज किसी को मालूम नहीं कौन शूद्र है, कौन ब्राह्मण है, कौन क्षत्रिय क्या है, सब कंफ्यूज्ड है। वो अपना लिनिएज रहेगा, हो सकता है ब्राह्मण का, क्षत्रिय का, वैश्य का, राइट, एंड सम में भी
properly situated, but most of the population is not properly situated, right? So 1000 पॉपुलेशन में 900 लोग आपको मिलेंगे जिनको बिल्कुल बुद्धि नहीं है, जो जस्ट हाँ ये पत्थर यहाँ के उठा के यहाँ रखो, हाँ ये पत्थर यहाँ से उठा के यहाँ पे रखना है, वहाँ से उठा के वहाँ, बस उतना ही उनको समझ में आता है. They can't apply their brain. You must have dealt with your laborers, right? उनका काम होता है खाली हाँ मौसी वो झाड़ू वहाँ से उठा के यहाँ पे रख दो, हाँ उसको दादा दिमागी काम बोलेगा ना, दादा हे काम समजत नाही आपल्याला, जास्त टेंशन नका देऊ मला, क्या करना है बोलो, उठा के वहाँ रखना है, हाँ रख दिया, अभी मेरा मोबाइल किधर है, डोंट डिस्टर्ब माई मेंटल फैकल्टी विच इज नॉट सो एक्टिव, बिकॉज एक्टिव नहीं रहता है वो, राइट. 900 पीपल आर लाइक दैट एंड 90 पीपल आर बिजनेस पीपल, क्योंकि अभी 900 लोगों को कुछ तो रोजगार देने के लिए 90 लोगों को एक्टिव होना पड़ेगा ना. अभी 90 लोगों को और 900 लोगों को बचे हुए 990 इनको एडमिनिस्टर तो करना पड़ेगा, इसलिए 9 क्षत्रिय तो बनते ही, उसमें से कोई ना कोई मैनेजर बनता है, कोई पुलिस बनता है, कोई क्या बनता है, एंड सो ऑन. अब इन सबको अच्छी तरह से स्क्रिप्चरल गाइडेंस देने के लिए एक ब्राह्मण चाहिए, द वन हु कैन टेल कि धर्म से कमाओ, अधर्म से मत कमाओ, राइट. वैश्य को बोलेंगे, क्षत्रिय को बोलेंगे योर ड्यूटी इज टू प्रोटेक्ट द सिटीजन्स एंड देन टेक द टैक्सेस, एंड टैक्सेस भी किसके लिए, सो दैट यू कैन डू सम वेलफेयर एक्टिविटी फॉर द रेस्ट ऑफ द पीपल, यू कैन अरेंज नाइस रोड अच्छी तरह बनाओ, पीने के पानी की व्यवस्था करो, स्टेशंस बनाओ, ट्रेन लेके आओ, एंड ऑल दिस थिंग्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स, एंड ओनली वन ब्राह्मणा. नाउ द इंटरेस्टिंग थिंग इज that one brahmana also is actually not brahmana unless he is trained. हरे कृष्णा. तो आपने ये सुना होगा, ये आगे जाके आएगा, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागश, गीता में कृष्ण कहेंगे 4थे अध्याय में कि मैंने 4 वर्ण और आश्रम की व्यवस्था बनाई है. What are the 4 varnas? ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, these are the 4 varnas. सुना नहीं कभी नेहा माता जी आपने? आप लोग वैश्य है ना? But what? Again, is this confusion? A lot of things are confused. As you said, a lot of people don't know who they are. That's okay. But मोटा मोटी मालूम है ना? You are business people. Yes. And your propensity is to do business, right? And yeah, so these 4 varnas, and आश्रम तो अलग है, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, राइट. इसमें 4 आश्रम है यहाँ पर. हरे कृष्ण. सब आश्रम यहाँ पे मौजूद है. So ब्रह्मचारी मीन्स आप टेक्निकली बोलेंगे आज के युग में ब्रह्मचारी कौन है? ब्रह्मचारी मतलब स्टूडेंट लाइफ. So he is a student, right? He's still studying and also learning. Then student life, ब्रह्मचारी 25 साल. Sorry? We're all students in the life. Throughout life you are student. We all are. Yeah, that is different kind of student. This is as per वर्णाश्रम. आश्रम, आश्रम यानी कि जहाँ पे आपको शेल्टर मिलता है उसे आश्रम कहते हैं, आश्रय जहाँ मिलता है. सो गृहस्थ इज आश्रम वेयर यू गेट द शेल्टर, इजंट इट? पति पत्नी अगर बोल देंगे कि मुझे, आप बोलेंगे अकेले रहना है मुझे, व्हाट काइंड ऑफ शेल्टर यू हैव? कुछ भोजन बनाने कौन बना के देगा आपको? या घर में कंफर्ट चाहिए आराम से बैठ के, कौन देगा आपको? आस्क दोज बैचलर्स हु आर 50 एंड स्टिल नॉट मैरिड, उनको आश्रय नहीं है. समझे कि नहीं आप? सो यू नीड आश्रय. सिमिलरली ब्रह्मचारी, उसको आश्रम, इंस्टीट्यूशन का आश्रम है, सॉरी आश्रय है. ब्रह्मचारी आश्रम होता है ना, गुरु का गुरुकुल होता है, जो भी होता है वहाँ पे आश्रय मिलता है उनको. तो वहाँ पे जो भी सिंपल व्यवस्था है, यू मे हैव सम ऑपुलेंट व्यवस्था, हम लोगों के लिए सिंपल व्यवस्था है, बिकॉज एज पर द जॉब वर्क डिफरेंट काइंड ऑफ सेटअप्स आर क्रिएटेड. तो ठीक है, हमारा रहेगा रोज 2-3 दिन में भोपले का सब्जी बनता होगा. यू मे हैव पनीर का सब्जी इन जस्ट इन once in a week or 2-3 days in a week, बट हम लोग तो सेटअप है आश्रम, राइट. अब ये जो आश्रम होता है, ये आश्रम तो ठीक है, ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, गृहस्थ, संन्यास. लेकिन वर्ण जो होता है ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, ये जो 1000 का कैलकुलेशन दिया गया, 999 and 1, that one brahmana also, if unless he is trained, he cannot become brahmana actually.
क्योंकि दो फीचर होते हैं वर्ण के, गुण और कर्म, राइट? तो आपको अगर ब्राह्मण कहना है नीलेश प्रभु, ध्यान रखना, इफ यू मिस दिस पॉइंट यू विल मिस द कमिंग सेक्शंस, यू विल नॉट अंडरस्टैंड. लिटिल टेक्निकल बट सिंपल. दो चीजें होती हैं, गुण और Of good. नो नो, हाँ मतलब यस, गुण और कर्म. कोई भी व्यक्ति इन दो चीजों से बनता है. वर्ण जो है, अच्छा आपका वैश्य है तो आपका गुण क्या बताइए? I have to get knowledge of how to excel my work. दैट इज कर्म. कर्म मतलब स्किल रे बाबा, सिंपल. Skill. टर्म्स को ज्यादा कॉम्प्लेक्स मत करो. कर्म मतलब सिंपल स्किल. Skill. एक यू नो, How to develop the skill. या यू हैव टू डेवलप द स्किल, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये काम करने से क्या निकलता है, इसमें से क्या, बिकॉज बेसिकली प्रोडक्ट नॉलेज एंड हाउ टू ऑपरेट दैट, यू नो, एंड हाउ टू यूटिलाइज दिस, और संसार में कैसे बांटना है, इसको नॉलेज होता है उसको, राइट? दिस इज स्किल यानी कि कर्मा. एंड दैट कर्मा समटाइम्स इज बिकॉज ऑफ योर पास्ट कर्मा, इजंट इट? सो समटाइम आपका बच्चा में भी बड़ा बड़ा पढ़ाई करके आएगा, लेकिन उसको जो नहीं समझेगा उसको वो आपको समझा हुआ है पहले ही. बोलेगा पापा मैं तो आपसे ज़्यादा पढ़ाई करके आया हूँ, लेकिन ये प्रोडक्ट कैसे बेचने का मुझे समझ में नहीं आता है, आप तो बराबर बेच लेते हो. कैसे? बिकॉज यू मे हैव मोर ऑफ अ कर्मा ऑफ द पास्ट लाइफ, एंड इन दिस लाइफ ऑल्सो यू हैव ट्रेन एंड कल्टिवेटेड इट फर्दर. लेकिन गुण भी होता है वैश्य का. क्या गुण होना चाहिए वैश्य का? ये तो कर्म हो गया, आज पर स्क्रिप्चर में कह रहा हूं, क्योंकि गुण और कर्म जो है शास्त्र बताता है कि ब्राह्मण का, वैश्य का, शूद्र का, वैश्य का गुण क्या होना चाहिए, कर्म क्या होना चाहिए. नाउ बिफोर गोइंग इनटू योर एग्जांपल, लेट अस गो टू एग्जांपल ऑफ ब्राह्मण, बिकॉज देन यू विल अंडरस्टैंड इट प्रॉपर्ली. तो देखिए ब्राह्मण जो है उसका इसको शास्त्रिक भाषा में कहते हैं, या सॉरी इंग्लिश में कहते हैं कॉम्पिटेंसी एंड स्किल. लिटिल टेक्निकल बट ट्राई टू अंडरस्टैंड, इट विल क्लैरिफाई लॉट ऑफ थिंग्स. कर्म यानी कि कॉम्पिटेंसी, राइट? या फिर स्किल, कर्म, कॉम्पिटेंसी. दो चीजें संसार में आज, भले आप गीता जाने ना जाने, लेकिन पूरे संसार में लोग इन दो चीजों को देख रहे हैं. यू मस्ट बी वेरी कॉम्पिटेंट. आप किसी को हायर करते हुए देखते हैं ना, वेदर यू आर कॉम्पिटेंट और नॉट टू वर्क, परफॉर्म दिस वर्क. बट यू ऑल्सो लुक फॉर कैरेक्टर, Yes. isn't it? Yes. If you don't see the good character, then you say, I think you are very competent, but I think I'll look for someone else. That character is called as guna. Good. गुण मतलब कैरेक्टर, और competency मतलब कर्म या फिर स्किल. आप मुझे बताइए दोनों जरूरी है या दोनों में से एक ही जरूरी है? दोनों जरूरी है. दोनों जरूरी है ना Yes. नीलेश प्रभु? कॉम्पिटेंट भी चाहिए, कैरेक्टर भी चाहिए. इसलिए तो कितने सारे इंटरव्यू होते रहते हैं, कितने सारे लोग इंटरव्यू के लिए आते हैं, उसमें से कितना सोचना पड़ता है आपको, एंड समटाइम्स मोर देन कॉम्पिटेंसी कैरेक्टर इज इवन मोर इम्पोर्टेंट. क्षत्रिय का गुण क्या होता है? लेट अस एनालाइज ब्राह्मण फर्स्ट, देन वी गो टू क्षत्रिय. लुक्स लाइक यू आर क्षत्रिय. जयपुर के राजपूत, नहीं, रावलपिंडी, रावलपिंडी, पाकिस्तान. पाकिस्तान से ओरिजिनली वहाँ से. अच्छा, पाकिस्तान भी इंडिया ही था पहले. हरे कृष्ण. आपको क्लियर हो रहा है ये? Yes. हम क्या स्टडी कर रहे हैं? भगवत गीता. भगवत गीता में हम स्टडी कर रहे हैं कि हाउ पीपल आर लेस इंटेलिजेंट इन सोसाइटी. समझे कि नहीं? Yes. क्योंकि वो क्या बोलते हैं, वेदों में कर्मकांडीय विधि विधान दिए हैं, मजा करो, खाओ पियो, एंजॉय करो. फॉर श्योर वी आर कंप्लीटिंग 2 वर्सेस टुडे, बिकॉज दीज आर है ना. तो अभी देखिए कितना बड़ा प्रॉब्लम है ये. इट्स अ मेजर प्रॉब्लम इन करंट टुडे सोसाइटी, बिकॉज वी हैव लॉट ऑफ पीपल हु हैव फैबुलस Skill. स्किल्स, है ना. जैसे कोई लोग रहते हैं इतने कॉम्पिटेंट रहते हैं, उनको अगर बोला जाए कि मेमोराइज करो, ये एक झटके में 2 दिन के अंदर मेमोराइज करके आ जाएंगे. उनको बोलो मैनेज दिस, दे मैनेज सो एक्सपर्टली. यू आर थिंकिंग टेक ओवर ना कर ले मेरे कंपनी के ऊपर ये.
हरे कृष्णा। ये ना हमारे आश्रम में भी ऐसे कुछ ब्रह्मचारी ऐसे श्लोक पठन करते हैं कि अरे बाप रे, उनको देख के चक्कर आता है हमको। लेक्चर में ऐसे श्लोक बोले जैसे हवा बहती है ना, श्लोक ऐसे बहते हैं उनके मुख से। सो दे हैव दिस अमेजिंग स्किल और कैपेसिटी। तो कुछ अच्छा। एंड देयर आर सम डिवोटीज इन आवर इस्कॉन, फंड रेजिंग ऐसा करते हैं, माय गॉड। उनको बोला जाएगा वी हैव टू रेज 1 करोड़ फॉर द न्यू प्रोजेक्ट। 6 महीने के अंदर 1 करोड़ रुपए जमा करके लेके आ जाएंगे। मुझे अगर बोला जाए हरे कृष्णा, सो डिफिकल्ट फॉर मी समटाइम्स टू आस्क मनी टू पीपल। मेरे साथ कुछ ऐसे लोग जुड़े हुए हैं, those who are